mic. Don't have high fever and then throat infection also. Please cooperate. Can I start? Yeah. Good morning. I welcome all the participants and dignitaries and delegates from other colleges. It's an honor to have with us today Dr. A.M. Shende, Principal PGLC and Coordinator of this FDP to deliver this technical session. May I please request Professor Ashish Modi to please welcome our session speaker with a memento as a token of respect. Thank you, sir. You will proceed. Thank you. Thank you. Very good morning to all. Basically, this FDP is on artificial neural network. Sorry, artificial intelligence. And today I am going to deal with artificial neural network, ANN. That is, in AI, there are two main concepts. One is your deep learning, another is your machine learning, and AI is a part of deep learning. So what happened? India में ऐसा होता है कि every researcher never do lots of work. Maybe civil engineer, electrical, electronics, computer engineer. We collected lots of data, but that data is never used again. And next time when any researcher start work again, they do same work. So how, with the use of experimental data, with the help of field data, with the help of collected data, how you can prepare the model? But in short, with the help of independent data, how you can calculate the dependent thing, that is in my presentation. How many have completed your PhD here? One. So rest, जिनका PhD नहीं हुआ है, for that it's very important because if field data is available with you, with experimental data is available with you, how you can calculate the rest thing, ये इसमें आपको explain करूंगा मैं. So here, mathematical model, formulation, experimental database. What we call is independent term. बहुत सारे मैडम से आपको बता दूं कि आपकी पनीर की सब्जी भी है, उसमें इंडिपेंडेंट टर्म से टिकट होता है, हल्दी होती है, नमक होता है, पनीर होता है, and then paneer masala hota hai. That is the independent term, and on the basis of that independent term, how you calculate whether it's spicy, non-spicy, कैसा ये डिपेंडेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. सेम हियर, इफ यू इंडिपेंडेंट डाटा, एनी इंडिपेंडेंट डाटा, आपका कोविड कोरोना का डाटा है कि इसका टेम्परेचर है 101 टेम्परेचर है, 3 दिन से टेम्परेचर में उतर रहा है, खांसी है, ये सिम्टम्स है, तो वो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वेदर इज द पेशेंट ऑफ कोरोना और नॉट. या उसके भी अलावा जो विच आई इम्प्लीमेंटेड इन 2012 विद एक्सेल शीट, एट दैट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट देयर, एट दैट टाइम एआई इज नॉट देयर, कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट बहुत कम रहता था. So then I checked कि what happened, why our college results are not up to the mark. बाकी कॉलेज से अभी तो 2013 से तो हार्डली एक आधा कॉलेज है जो हमसे कॉम्पीट करता होगा रिजल्ट में अभी, बिकॉज आई नो फैकल्टी फ्रॉम अदर कॉलेजेस हियर. बट जब हमने वी डू द एनालिसिस कि उनके वो बच्चों की मैंने यूनिट टेस्ट के मार्क्स कैलकुलेट किए, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, सेशनल एग्जामिनेशन और उनका लास्ट ईयर का रिजल्ट. They do all these are the independent thing. Unit test mark, unit test 2, that is known. I am talking regarding 2022 data. Last year का डाटा आपके पास है. यूनिट टेस्ट 1 का है, यूनिट टेस्ट 2 का है, सेशनल का है, आपके पास उनका फाइनल रिजल्ट है. एंड विद दिस, कैन इट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट ईयर? ये पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल इन एएनएन. दिस इज पॉसिबल इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क. सर प्लीज कम ऑन दिस साइड. ये पॉसिबल है. आप आपके किड्स के साथ ये कर सकते हो, आप आपके क्लास, इफ योर क्लास टीचर, आप उसके साथ भी यू कैन इजीली कैलकुलेट. इफ यू नो यूनिट टेस्ट मार्क 1, इफ यू नो यूनिट टेस्ट मार्क 2, इफ यू नो सेशनल मार्क, इफ यू नो लास्ट ईयर फाइनल ईयर दैट फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जाम मार्क, on the basis of if you do mathematical calculations, मैं आगे जाने वाला हूँ, so you can easily predict. 2023 में तो ऐसे ही हमने एनालिसिस किया था. इन 2012 देयर व्हाट वी ऑब्जर्व, हमारे स्टूडेंट 2 या 3 मार्क्स से फेल हो रहे थे.
So we come to a concrete decision from the whole data of last 2008 to 2012, 4 साल के data से कि those students who score 60% marks in unit test, 20 out of 12 जो बच्चों को मिले हैं मार्क्स यूनिट टेस्ट में, वो बच्चा 100% फाइनल एग्जाम में पास हुआ है. जिनको 12 मार्क्स नहीं मिले, दे फेल्ड इन फाइनल एग्जामिनेशन. एंड देन वी कम विथ वन पॉलिसी कि जो स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट में 12 मार्क्स नहीं मिलते, 60% मार्क्स, इफ दे हैव नॉट स्कोर 60% मार्क इन यूनिट टेस्ट, रीटेस्ट होगी जब तक 12%. एंड वेरी नाइसली ऑल माय प्रॉमिसिंग की कोऑपरेट मी, जो ऐसे हमारे फैकल्टी ने, एंड इट्स अ मिरेकल, इट्स अ सरप्राइज, इन 2013 ऑनवर्ड्स वी नेवर सी रिजल्ट्स ऑफ आवर कॉलेज. संस्था लेवल में भी टॉप था, यूनिवर्सिटी में भी टॉप था. सो दैट from this independent pie, what we call this pie in mathematical, from this independent, what we say, material, from this independent data, from this जो हमारे पास डाटा था उससे हमने वो प्रेडिक्ट किया. So now the journey with civil engineering, but you can implement it in any electronics engineering, computer engineering, physics, chemistry, math students. Then you for a medical field, for flood detection, everywhere you can use this artificial neural network or remaining mathematical model. So with your permission, we forward. Yes. Now, thoda, though I'm taking the advantage of civil engineering, though my background BM Tech, PhD, and DSc in civil engineering. So try to explain this model in civil engineering way. General है कि आप घर में रहते हो, you know everything. What is concrete basically? It's the cement, sand, aggregate, and water. सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर, एग्रीगेट यानी गिट्टी, सैंड यानी रेती, वाटर, इसका कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, वी कॉल्ड इट्स अ कंक्रीट, जिससे हमारा स्लैब होता है. एंड व्हाट इज फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट? सीमेंट भी है, सैंड भी, एग्रीगेट है, और उसमें हमने कुछ स्टील के फाइबर्स ऐड किए हैं, दैट वी कॉल इट्स अ स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. वेलकम. दैट वी कॉल स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. जैसे पोहा के ऊपर हम कोबरा कीस डालते हैं फॉर टेस्ट एंड देन सेम टू गेटिंग स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, हम उसमें स्टील फाइबर ऐड करते हैं. डोंट गो इन डिटेल उसके सिविल इंजीनियरिंग डिटेल में मत जाओ, बट यू नो मस्ट नो व्हाट इज कंक्रीट. कंक्रीट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड वाटर. और उसी में अगर हम स्टील फाइबर ऐड करते हैं, स्टील की छोटी छोटी टुकड़े, दैट इज कॉल्ड स्टील फाइबर. ये इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव होल स्टडी सभी एविडेंस के साथ है. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ सिविल इंजीनियरिंग एग्जांपल. अदरवाइज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कैन यूज दिस मॉडल इन योर कुकिंग. पनीर के सब्जी में भी यूज होगा, रिजल्ट में भी यूज होगा, फ्लड प्रेडिक्शन में भी यूज होगा. यू कैन यूज एनीवेयर. बट दुख की बात है कि हमारे डाटा रिपीटेडली हमको कलेक्ट करना पड़ता है. नो वन कैन यूज द प्रेजेंट डाटा. यस, नेक्स्ट. सो हियर थोड़ा सा कोऑपरेट. नाउ इट्स जो हमारे पास डाटा है, वी कॉल इट्स इंडिपेंडेंट टर्म्स. जो डाटा है मेरे पास स्टूडेंट का रिजल्ट, वी कॉल इट्स इंडिपेंडेंट टर्म, इट्स मैथमेटिकल टर्म. सो हियर पाई 1 इज वाटर सीमेंट रेशियो. वाटर और सीमेंट का रेशियो, जैसे मैंने बताया पनीर के सब्जी में मसाला और पानी, मसाला पानी रेशियो. सो हियर वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मींस एग्रीगेट और सीमेंट का रेशियो. पाई 2, पाई 3 परसेंटेज ऑफ फाइबर, कितना परसेंट फाइबर आपने उसमें यूज किया, 1%, 2%, 3%. ये जैसे आप पनीर के सब्जी में स्पाइसी चाहिए तो 3 चम्मच चिकन डालोगे, थोड़ा मीडियम चाहिए तो 2 चम्मच डालोगे. इट्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, इट्स सेम फॉर फाइबर. Pi 4 is aspect ratio. This term is related to only and only for fiber. ये याद रखो. It is the ratio of length upon diameter of fiber. इतने इतने फाइबर के टुकड़े होते हैं, उसकी length divided by diameter is for aspect ratio. That term is real 100% related to fiber. And pi 5 is a control strength. Control strength means बिना फाइबर ऐड किए हुए जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ, वी कॉल दैट इज ए कंट्रोल स्ट्रेंथ. पनीर के सब्जी में तिखट, हल्दी, मीट, पानी, बिना पनीर का मसाला इज कॉल्ड कंट्रोल सब्जी. इज कॉल्ड कंट्रोल सब्जी, जिसमें पनीर मसाला नहीं है. वंस यू ऐड पनीर मसाला, देन इट्स बिकम पनीर सब्जी. सो सेम हियर, control strength of concrete without fiber, plain concrete. So this is my independent part. This is all independent terms with me. So what I do next, मेरा डाटा PhD का, then I collected the data worldwide. जिन्होंने ऐसे लेवल का काम किया है, गैदर्ड एट वन प्लेस, पाई 1, पाई 2, पाई 3, पाई 4 सबका एक जगह कलेक्ट किया. एंड देन नेक्स्ट 5 independent part we use
पहले मैंने एक्सप्लेन किया आपको. नाउ हियर आई स्टार्टेड मैथमेटिकल मॉडलिंग. यू प्लीज गो थ्रू, एक बार पढ़ लो. इंडिपेंडेंट बाय इज नोन. मेरा टारगेट है कि मुझे स्टील फाइबर कंक्रीट की स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट करना है बाय यूजिंग इंडिपेंडेंट डाटा. बीइंग ए प्रिंसिपल मेरा टारगेट था 2012 में कि प्रीवियस यूनिट टेस्ट का डाटा, सेशन का डाटा से उनका फाइनल रिजल्ट प्रेडिक्ट करना. मैं पहले ही बता दूंगा कि अगर बच्चों को यूनिट टेस्ट में लेस देन 60% मार्क है, ही नेवर पास इन फाइनल एग्जामिनेशन. छोटे से सिलेबस में 60% मार्क नहीं मिलते तो होल सिलेबस में 40 कहां से मिलेंगे. सो दैट इज बट अगेन दैट वी प्रूव मैथमेटिकली. सो डिपेंडेंट टर्म माय नेक्स्ट है कि मुझे प्रेडिक्ट करना है फाइबर की स्ट्रेंथ बाय यूजिंग ऑल these 5 independent data. So here first experimental values from own and other literature data. मेरे खुद के 30-35 रीडिंग थे, बाकी वर्ल्ड वाइड मैंने 514 रीडिंग्स कलेक्ट किए. सो हियर पाई 1, पाई 2 ये मेरे पास है, पाई 3, पाई 4, पाई 5 ये वाटर सीमेंट रेशियो, इसमें मैंने 3% फाइबर डालना था. सॉरी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, इसमें 1% फाइबर डालना था. इसका एस्पेक्ट रेशियो 60 था, उसकी कंट्रोल स्ट्रेंथ 30.54 थी, और इसकी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ भी मेरे पास है, वो थी 35.9. जैसे मैं बोला ना कि 2022 का मेरे पास सब है. उनकी यूनिट टेस्ट 1 के मार्क, उनकी यूनिट टेस्ट 2 के मार्क, उनके सेशनल के मार्क, उनके इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क, और उनका फाइनल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी. सो दिस इज नथिंग बट देयर फाइनल यूनिवर्सिटी रिजल्ट, अवेलेबल डाटा. हमने कंट्रोल स्ट्रेंथ ली है तो ये अवेलेबल डाटा है. सो विद दिस नाउ द नेक्स्ट पार्ट है प्रीवियस चलेगा. हाँ, तो इससे मैंने पहला मॉडल फॉर्म कर रहा हूँ. नो नीड टू राइट. अगर किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए अवेलेबल, यू कैन टेक. मैंने भी आज डायरेक्टली देखा है जब बनाया था, तो आई शुड नो इट्स वेरी बड़ी. So now there are various mathematical models. Mathematical models आपको 12th में पढ़े हैं, but we never use. वही है हमारी दिक्कत कि हम पढ़ते बहुत है, but हमको उसका एप्लीकेशन नहीं पता होता है. Exponential equation हमने बहुत पहले पढ़ा, but we don't know the application of that. So here first I tried to prepare exponential equation. ये पाई 1 पाई 2 कांस्टेंट के लेके k1 पाई 1 ये सब लेके वेरी इजी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस तैयार किया. एंड दिस फ्रॉम दिस ऑल पाई 1 पाई 2 मैथमेटिकल टर्म्स है. बहुत डिटेल में जाऊंगा तो मुझे दिन लगेगा, बट आई नो एवरीथिंग. मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि हियर आई प्रिपेयर दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला. हियर यू ऑब्जर्व पाई 01 m1 मींस प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ हमको चाहिए. वी वांट टू कैलकुलेट प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ. उसके लिए मैंने ये सब आपको इसमें पुट करना है. एंड दिस इज द कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो. आपके पास है वाटर सीमेंट रेशियो? इसको इसमें ये एग्रीगेट सीमेंट रेशियो आपके पास है, परसेंटेज ऑफ फाइबर आपके पास है, एस्पेक्ट रेशियो आपके पास है, कंट्रोल स्ट्रेंथ आपके पास है. इससे from if I put all this value in this, I will automatically create predictive strength. मैं उसकी स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट कर सकता हूँ. नाउ आई कैन चेंज दिस. मुझे यहाँ पे अगर परसेंटेज ऑफ फाइबर 2 यूज करना है तो ये फॉर्मूला में 2 यूज करूंगा, मुझे वो रिजल्ट मिलेगा. If I use aspect ratio 70 here, कुछ भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसमें, and I can calculate predictive strength. Same like once you prepared a formula in exponential model, आप कोई भी बच्चे की यूनिट टेस्ट के मार्क उसमें डालो. पहले अभय के डालो, आशिष के डालो, अजित के डालो, पूजा के, and go on calculating the results. Because ये सब 514 रीडिंग से आपने फॉर्मूला बनाया, इट्स एक्सपोनेंशियल रीडिंग. तो ये प्रेडिक्टिव स्ट्रेंथ, इसकी ब्यूटी आगे दिखाता हूँ. नाउ हियर रेफरेंस नंबर 45. ये प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ फार्मूला से आई है 33.57. एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ थी 35.9. ये हमारे पास थी ऑलरेडी. वो फार्मूला से मैंने स्ट्रेडिंग की, इसमें 2.32% एरर आया है. नेक्स्ट आप देख सकते हो इसमें. नेक्स्ट इसमें भी कुछ जगह डिफरेंस है, 5%, 10%, 15% का. ये कंप्लीट कंटिन्यू है. हमने हमारे फॉर्मूला में डाल के चेक किया कि प्रेडिक्टेड, हमने जो प्रेडिक्ट किया है
वो एक्सपेरिमेंटल से मैच होती है कि नहीं. हियर वी ऑब्जर्व प्लस माइनस 10% का वेरिएशन, नॉट मोर देन दैट, मींस वी कॉल इट्स रिलायबल. वी नेवर से इट्स वैलिड. वैलिड मींस 100% बट रिलायबल. ये पेन की कॉस्ट अगर 10 रुपीज है या 100 रुपीज, इफ यू से इट्स 85 और 115, इट्स ओके, इट्स रिलायबल. प्लस उससे ज्यादा है, सो देन यू हैव टू थिंक. सो ये सॉरी, कंप्लीट पहला मॉडल है, इसलिए मैंने डिटेल दिया है. आपने देखा होगा प्रेडिक्ट, दिस इज प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ, एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ, दिस इज एरर. ये मेरा डाटा है और वर्ल्ड वाइड डाटा है. उनका डाटा मैंने यूज किया टू प्रिपेयर दिस फॉर्मूला. ऐसे आप भी कर सकते हो. आपका रिसर्च डाटा एंड देन सिमिलर डाटा वर्ल्ड वाइड, एंड देन यू कैन कम विथ कॉन्क्रीट सम इक्वेशन. इसमें बहुत है आगे. सॉरी. सो हियर ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए कि 0% एरर में कितने रीडिंग्स है आउट ऑफ 514. 1% में कितने हैं, 2% में कितने हैं. इसमें देखा है कि 10% में सिर्फ 28 है. 0% इसमें, तो वी कॉल फ्रॉम दिस एरर फ्रीक्वेंसी यू कैन से इट्स रिलायबल. ये अगर डिफरेंस होता बहुत ज्यादा तो वी कांट रिलाई ऑन दैट फॉर्मूला. तो हियर आपको दिख रहा है 0% एरर के 53 रीडिंग्स है, 1% के 50. तो ये भी हमको निकालते आना चाहिए कि जब हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो फिजिक्स में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने परसेंट से फेल हो रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने, ये सब ये भी आपको इससे इजीली कैलकुलेट होगा. तो इस मैथमेटिकल मॉडल एरर फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ, इससे आपको दिखेगा कि 25 में से गिनी चुनी रीडिंग से रेस्ट बिलो 10 या 15 तक, सो वी कॉल इट्स रिलायबल. नाउ सबसे, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, बट सबको ये होता है कि इफ योर आस्क योर वैल्यू इज मोर, then we call that mathematical model is perfect. R square अगर एक के करीब होती है वैल्यू, ये वैसे पुराना कंसेप्ट है, आगे मैं बताऊंगा, बट अभी तक 2020-21 तक यही था वर्ल्ड वाइड. इफ योर R square value is nearer to 1, then we call that mathematical model is perfect. Coefficient of determinant model. तो ये R square की वैल्यू इज 0.99. ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अपने पुट करने से मैथमेटिकल फॉर्मूला हियर, वो R is 0.9938 नियर अबाउट. You please read this. ये क्वेश्चन थोड़ा प्लीज पढ़ो. जो 5 आपके पास डाटा था, जब आपने उसको मैथमेटिकल मॉडल में यूज किया, व्हाट हैपेंड, विच, किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखा आपको. जैसे बच्चों का फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, ह्यूमैनिटीज है, ऐसे एक दो सब्जेक्ट होते कि जिसकी वजह से कोई रिजल्ट का फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे इसमें. बट कंट्रोल स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट की, ये सबसे प्रिडोमिनेंट है 0.98. ये बाकी जो दूसरे, इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं, पॉइंट नहीं. विद वाटर सीमेंट रेशो एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशो, ये लिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. 5 हमारे पास थे इंडिपेंडेंट, पर ये दोनों लिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीनों का मेजर कंट्रीब्यूशन है. सो व्हेन इट्स, जो मॉडल हमने बनाया था इसमें, उसके आगे भी हम जाएंगे. सेम आर स्क्वायर वैल्यू, ये थोड़ा मैथमेटिकल है. आई वांट टू टेल, हाँ, सेंसिटिविटी एनालिसिस. अब ये सेंसिटिविटी एनालिसिस ये है कि मैं बताया ना कि पनीर की सब्जी में सेंसिटिविटी का पार्ट ये है कि पनीर मसाला भी ज्यादा होने से एसिडिटी होगी, और तीखट ज्यादा होने से भी दिक्कत आएगी, नमक ज्यादा. सो आउट ऑफ दैट इंडिपेंडेंट विच इज वेरी सेंसिटिव. So here also same. Here, oh sorry. आगे गए क्या? पुढे पुढे जात आहे काय? Oh sorry. हे का? ही? Oh sorry.
ये सेंसिटिव है ना, तो सेंसिटिव एनालिसिस करना बहुत जरूरी है इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो, क्लास में भी जो बच्चे होते हैं या इसमें। सो ये इसमें भी हमको दिख रहा है कि कंट्रोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। ये अगर आपने प्रॉपर वैल्यू इसकी गलत होगी तो आपका प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। इस सबसे ये कंट्रोल वाटर वाटर सीमेंट रेशियो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो थोड़ा बहुत गलत भी होता है तो आपके ओवरऑल रिजल्ट भी कोई फर्क नहीं होगा। बट हियर वी ऑब्जर्व सो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी करते आना चाहिए। बेसिकली इट्स ये मैं डिटेल इसलिए अभी अगर बता रहा हूँ, इफ आई गो ऑन डिटेलिंग सो 2-3 घंटे का क्लास हो जाएगा, बट आई वांट टू शो द कंसेप्ट ओनली कि इंडिपेंडेंट टर्म्स से आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिपेंडेंट टर्म्स विद योर डाटा एंड विद अदर डाटा। उसमें से आप सेंसिटिव कौन सा है, सबसे प्रिडोमिनेंट कौन सा है, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहला था मुझे फर्स्ट मॉडल इज एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल, जिसका मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था। वो देखा आपने, उसका एरर 25% के अंदर थे, प्लस माइनस 15 के अंदर थे, मींस दैट एक्सपोनेंशियल मॉडल इज रिलायबल। बट हम एक मॉडल पे रिलाय नहीं रख सकते। We can't rely on one model when you take your data and other data. So yeah, for that आपको जो भी ऑप्शंस है आपके मैथमेटिकल मॉडल के टॉप के, उसको सब में वो डाटा लगाना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि हमको देयर आर ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं तो वो माइन्यूटली हेमोग्लोबिन होना है तो अलग मशीन है, शुगर है तो अलग मशीन है, तो सेम फॉर्मूला आपको, सेम इंडिपेंडेंट पाई आपको, सेम इंडिपेंडेंट टर्म्स आपको अलग अलग मैथमेटिक्स में देख के ये देखना है कि आउट ऑफ दैट 3-4 मॉडल विच इज द बेस्ट वन, देन यू रिकमेंडेड टू नेक्स्ट। अब बाद में हो, अभी किसी को फाइबर एनफोर्स कंक्रीट यूज करना है मार्केट में, तो उनको पहले कंक्रीट बना के उसमें फाइबर डाल के उसमें 28 दिन पानी में क्यों रखने की जरूरत नहीं है। 28 दिन के बाद वो टेस्ट होगा कि अरे इसकी स्ट्रेंथ तो 35 आ रही है। इफ दे पुट ऑल द डाटा इन दैट इवन दो दे कैन प्रेडिक्ट इट, अरे हमको दो, जैसे अपने यहाँ देखा कि रोड में सब जगह फाइबर डाल दे, या जो भी ये है मैनहोल्स जिसको बोलते हैं, जो सेप्टिक टैंक्स के वगैरह जो कवर है उसमें भी फाइबर डालना है, उसकी स्ट्रेंथ अगर हमको निकालना है तो दे पुट ऑल दिस थिंग्स, वो सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे तो उनको आ जाएगा कि अरे 35, और उनको स्ट्रेंथ अगर 32 चाहिए, इट्स ओके, नो नीड टू डू एक्सपेरिमेंट को, रेती लाओ, सीमेंट लाओ, एग्रीगेट लाओ, लेबर बुलाओ, हाथ भरो, 28 दिन रहा देखो, ये करने की जरूरत नहीं। बट ये हम एक मॉडल पे नहीं कर सकते। ऐसा होगा कि घर में दो बच्चे, उसके बेसिस पे आप बाकी बच्चों का एनालिसिस बता दोगे कि मेरे बच्चों को 80 है तो आपकी भी बेटी को 85 मिलेंगे। सो दिस इज अनदर मैथमेटिकल मॉडल, इज लॉग लीनियर मैथमेटिकल मॉडल। पहला कौन सा था? पहला मॉडल मैथमेटिकल मॉडल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल। सेंसिटिविटी जो हमने ये देखा था कि कौन सा सेंसिटिव है, ये लाइफ में भी बहुत काम करता है। एक चीज याद रखना, वही नहीं, हम केमिकल्स नहीं है, जैसे किसी ने कुछ बात बोल दी हम तुरंत रिएक्ट करते, वी आर नॉट केमिकल टू रिएक्ट, ये याद रखो। तो इसमें ये पांच में कौन सा सेंसिटिव था ये हमने पहले कैलकुलेट किया। बट फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल इज एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल एंड सेकंड इज लॉग लीनियर मैथमेटिकल मॉडल। ये सेकंड मॉडल है। डायरेक्टली मैंने इसमें फॉर्मूला लिखा, वही पांच इंडिपेंडेंट पाई है मेरे, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, कंट्रोल स्ट्रेंथ, परसेंटेज ऑफ फाइबर, ये सब। ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला बनाया डायरेक्टली लॉग, ये मैथमेटिकल में आप इजीली बना सकते हो। नहीं तो कैसे बनाना ये भी बता देता हूँ शॉर्टकट में। अगर ये 514 रीडिंग्स आपके पास है तो उसका ग्राफ बना, डॉट 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 आएंगे ना एक्स और वाई एक्सिस में, ग्राफ से इक्वेशन पूछो, लॉग लीनियर मैथमेटिकल मॉडल का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, वो तो कंप्यूटर में इजीली मिलता है। उसमें भी आप पांचों वैल्यू डालते हैं, जैसे y इक्वल टू mx प्लस c है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सो m x प्लस c, x कोऑर्डिनेट, c की वैल्यू अगर डालते हो तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। सेम हियर, अगर आपको मैथमेटिकल मॉडल नहीं आ रहा है क्योंकि मैथ हम अगर भूल गए, लंबी प्रोसेस है, तो आप उसका ग्राफ बनाओ, 514 रीडिंग डॉट 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 डॉट, उसका इक्वेशन पूछो, और इक्वेशन जैसे फ्लैट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c है, वैसा ऐसा बड़ा इक्वेशन आएगा। बट ये मैंने मैथमेटिकल मॉडल से किया है, आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, तीसरा रास्ता भी तुरंत बाद बताऊंगा। तो ये सेकंड है प्रेडिक्टेड एसएमआरसी स्ट्रेंथ। इसमें देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस वाटर सीमेंट रेशियो अगर मेरा 0.44 है तो मैं यहाँ पे 0.44 यूज करूंगा। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर मेरा 0.38 है तो मैं 38 यूज करूंगा। जो भी परसेंट ऑफ फाइबर है, 1 2 3 4 5 जो भी है वो यूज करूंगा।
आस्पेक्ट रेशियो 40, 50, 60, 70 जो भी है, और कंट्रोल स्ट्रेंथ 20, 30, 40 जो भी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है मैं यहाँ यूज करूंगा, एंड देन आई कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन। पहला था एक्सपोनेंशियल, सेकंड इज लॉगरिथमिक। बोलेंगे सर इसका आर्टिफिशियल न्यूटन नेटवर्क से क्या रिलेशन है, ये मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। ये देखो डायरेक्ट, ये दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ 30.9, ये क्योंकि ये देखो पहले एक्सपेरिमेंट की भी जो है ना वही सेम रहेगी, वो चेंज होगी क्या, ये कंट्रोल स्ट्रेंथ क्या, एवरी टाइम दिस एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेंथ इज फिक्स, प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ में भी वैरी क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो रहा है, 35 से 34 से 3.9 टू ये परसेंटेज ऑफ एरर, यहाँ पे तो हमको सबसे बड़ा एक 17% दिख रहा है, बाकी 2, 3, 4, 5। देन कंपैरिजन बिटवीन लॉन्ग रिलेयर मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल, उसका कंपैरिजन है, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन गलत लिया है, येलो और ऑरेंज दिखता नहीं, आपने लेते हो येलो ब्लैक या ऐसा कुछ लेना चाहिए, बट इट्स, इफ यू ऑब्जर्व इट्स सिमिलर, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग और प्रेडिक्टेड ये सिमिलर है। यस, नाउ आई कम टू थर्ड मॉडल, ये आपके काम का है। Yeah. What is exponential mathematical model? Second is logarithmic model. Third is artificial neural network is a purely part of artificial intelligence. In deep learning we use this. आपको जिनको नॉलेज है, तो एएनएन का मॉडल हम मैटलैब पे भी यूज कर सकते हैं। इफ यू पुट ऑल द इनपुट्स तो आपको आउटपुट मिलेगा। इफ यू ऑल द इनपुट्स आपको, ये जब मैंने किया था तो मैटलैब 13 आई यूज एट दैट टाइम, सो आई पुट ऑल दीस 5 इंडिपेंडेंट पाई एंड देन उसके बाद सेम प्रेडिक्टेड स्ट्रेंथ एएनएन से, तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आप इजीली यूज कर सकते हो इन मैटलैब ओनली। तो हियर दिस इज द ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, रेट, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड न्यूरल नेटवर्क। कंपैरिजन है तीनों का, एक्सपोनेंशियल थोड़ा मैथमेटिकल, ये डायरेक्टली आपको मिलता है प्रिंट आउट एक्सपोनेंशियल का, लॉगरिथमिक का, एएनएन का। सो हियर जो मैंने लेंदी प्रोसीजर पहले की, यू कांट इमेजिन कि 514 रीडिंग्स को मैंने जब पूरा K1 कांस्टेंट निकाला, कांस्टेंट निकालने के बाद उसका इक्वेशन निकाला, इट्स वेरी 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 टीडियस प्रोसीजर, देन आई गेट दैट प्रेडिक्टेड फॉर्मूला। और उसमें मैंने फिर एक्सेल में सब डाला, फॉर्मूला एक्सेल में यूज करके सभी वैल्यूज पुट की, एंड देन आई कैलकुलेट प्रेडिक्टेड, एंड देन आई कैलकुलेट द वैल्यूज। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लेंदी, बट हियर इन एएनएन यू कैन डायरेक्ट, if you use MATLAB and you give the input independent items pacho, within a 10 minutes you will get the results. That's the beauty of artificial neural network. ANN, ये उसका ग्राफ था, ये भी स्टैंडर्डाइज ग्राफ है। अब ये भी है, अब इसका हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ मॉडल 1 विद एक्सपोनेंशियल आरएसएम आगे है, लॉग लीनियर मॉडल एंड दिस एएनएन मॉडल। एक्सपोनेंशियल स्ट्रेंथ ये थी, ये है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चेंज नहीं होगी, मॉडल 1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखी है, मॉडल 2 की देखी, ये एएनएन के रिजल्ट से, एएनएन का इनपुट हमने कंप्लीट वहां प्लेस किया, एएनएन से हमको रिजल्ट मिले, है ना। ये उसका कंपैरेटिव ग्राफ है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंटल मॉडल, एनालिटिकल मॉडल, लीनियर, एएनएन हियर इन दिस। अब जो सेंसिटिव टर्म देख ली, कौन सा फिनोमेना ये देख लिया, बट पांच में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है ये भी देखने का काम हमको करना है, क्योंकि पांच ऐसा अगर उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, who is the soul of that equation, so here we can by using this, इसकी एक टेक्निक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, if you put all this data independent pi terms with equation and if you ask tell me the important terms in ascending order, तो आपको एएनएन से डायरेक्ट ग्राफ मिलेगा कि पांच में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बाकी दो या तीन ऐसे। तो हियर यू ऑब्जर्व अगेन, कंट्रोल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पांच में, और अगेन हियर यू ऑब्जर्व वाटर सीमेंट रेशियो एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये
निकालना क्यों जरूरी है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। सो पहली थी हमारी मैथमेटिकल मॉडलिंग मेथड इज एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल, second is logarithmic, third is an artificial neural network, and fourth and ये भी बहुत लेटेस्ट है, maximum used in medical research work, that is response surface methodology RSM model. Again it's a part of ANN deep learning का ही part है ये। जैसे if you learn artificial intelligence, if you learn deep learning, artificial neural network and RSM is a part of this. So here same, I take the advantage of artificial neural network that time, put all the independent values 514 जो मेरे पास रीडिंग से, and here I calculate this formula, x और y के फॉर्म में है, आगे आपको ग्राफ से पता चल जाएगा। So ये ग्राफ उससे डायरेक्टली आपको मिलते हैं, दिस इज 3D ग्राफ कि जब ये 20 था इसमें x और y, जब y कुछ देर में प्लस c, हमारे पास 5 इक्वेशन है, ऐसा भी होगा कि हमको x एक्सिस पे 3 रीडिंग्स लेना है, y एक्सिस पे 2 3D ग्राफ में। So if you put all this in x axis में 3 और y axis में 2, so here they can very nicely give the readings की अगर इतना कंट्रोल स्ट्रेंथ है तो इतनी स्ट्रेंथ रहेगी, इतना कंट्रोल स्ट्रेंथ है इतनी कंट्रोल स्ट्रेंथ रहेगी। This directly you get by ANN, artificial neural network, we call it RSM method, research methodology, research RSM model. Now graph showing the importance of pi terms. तो ये देखो मैंने सभी मॉडल्स यहाँ पे लिखे हैं, ये पहला मैथमेटिकल मॉडल उसका इक्वेशन, लॉग लीनियर मॉडल उसका इक्वेशन, आरएसएम मॉडल उसका इक्वेशन, और एएनएन का इक्वेशन नहीं आता है आपको डायरेक्टली मिलते हैं तो एएनएन सॉल्यूशन, हाँ सिमुलेशन, यस बाय इन आर्टिफिशियल डीप लर्निंग में आपको आएगा, एरर एनालिसिस वी डू मैथमेटिकल फॉर्मूला। हाँ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ दो अभी कॉन्सेप्ट की चार आपने की एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, एएनएन एंड आरएसएम। सो आउट ऑफ 4 विच इज बेस्ट, क्योंकि सब में तो दिख रहा है कि एरर नियर अबाउट 15 20 25 आ रहे हैं, तो विच इज बेस्ट वन। पहले हम देखते थे कि जिसके आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा है, that coefficient determinant of coefficient we call that mathematical model is very good and perfect. Now in 2020 onward that theory completely become change. आर स्क्वायर की वैल्यू अगर एक भी है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैथमेटिकल मॉडल परफेक्ट है, वो मैथमेटिकल मॉडल आप यूज कर सकते हो, बट देन हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, ये सबको जानना जरूरी है। इफ यू आर डूइंग रिसर्च, if you are doing mathematical models, so on the basis of which then you say this mathematical model is perfect, for that in worldwide आप कहीं भी जाओ worldwide there are only this mathematical formula, various statistical test, गिने चुने 10 mathematical statistical model है, वो अगर आप यूज करते हो तो from that you can easily calculate कि ये out of these 4 this mathematical model is perfect, right? So here ये देखो ये सबको पता है, हमने पढ़ा है, सिर्फ हमारा ध्यान नहीं है। मैथ स्टैटिस्टिक्स बीएड तक के होता है, मीन बेसिक एरर, रूट मीन स्क्वायर रूट की, स्टैटिस्टिक्स मीन परसेंटेज एरर, प्रोबेबिलिटी भी होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ 95 मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, रिलेटिव रूट मींस स्टैंडर्ड, ये सभी स्टैटिस्टिक्स हमको पता है, बट वर्ल्ड वाइड देयर आर ओनली 10 फॉर्मूलाज। हाँ, यहाँ पे बड़ी सर्कस थी जो मुझे बहुत दिक्कत हुई, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत हो। मैं हमेशा आई डोंट नो, जब मेरा लाइफ का एक ही मोटो है कि माना कि इज्जा को गुलशन ना कर सकेंगे हम, पर कुछ काटे तो जरूर कम कर देंगे, गुजरेंगे जहाँ से हम। जो तकलीफ मुझे हुई मुझे नहीं लगता कि नेट विचेकर को हो। तो ये सब मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने एक्सेल में डाल के सभी 514 का है, सभी आगे आई शो यू द प्रूफ। ये पहली मैथमेटिकल मॉडल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आरएसएम एएनएन, ये सब ये इसका एवरेज डेविएशन सभी टेस्ट का ये सब इसमें पहला सैंपल कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट पहले के लिए हमने किया एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल आरएसएम एएनएन, ये सभी रीडिंग्स
वो जो रूट वाला फॉर्मूला था उसमें सब रीडिंग्स पुट किए। ये देखो ये एम बी का है 0.28 ये रिलेशन में डाले हैं। ये दूसरा है आर एस एम ई जो मॉडल था। 10 स्टैटिस्टिकल इक्वेशंस निकालने के लिए वी पुट ऑल द डाटा हियर। थोड़ा लेंदी है, स्लाइड्स पलटाते वक्त बहुत आसान लगता है, बट एक एक मॉडल को 4 4 दिन लगे मुझे। थैंक्स एंड इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक में ये सब मैंने किया है, अदरवाइज इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल टू कंप्लीट कि मेरे प्रिंसिपल के साथ ये मैच करना मुझे इम्पॉसिबल था। बट डेली 9 आवर्स का टारगेट, कंप्लीट 1 आवर 2 और 3 months एंड देन इट्स ओनली पॉसिबल। ये जो भी किसी को भी लगा तो ऑल दिस इज अवेलेबल विथ मी इन एक्सेल। ये सभी फॉर्मूलेज ये आए हैं 12 मैथमेटिकल वर्ल्ड का। ये एमईबी का ये रिजल्ट है, इसका ये है, इसका ये है, इसका है। उसका स्टैंडर्ड क्या आना चाहिए था देके रखा था पहले 0 1। ये इसका है। ये ये ऑब्जर्व ये आर स्क्वायर वैल्यू आपको सिर्फ यही पता है इसलिए मैं आर स्क्वायर बताते जा रहा हूँ। इसका 0.99 है, इसका 0.99 है, इसका 0.99 है, इसका 0.93 है, बट इन ईयर अबाउट सेम है। तो then, अगर इतना सेम है और ये दोनों तो एग्जैक्ट है, सो विच इज द बेस्ट मॉडल देन? पहले तो यही बोलते थे हम कि if your R square value is nearer to 1 we call it's the best. Now here all R square value is 99. So चारों पे आपने सेम काम किया, चारों पे इनपुट सेम दिया है, सो देन विच इज द मोस्ट, विच इज द बेस्ट? ये फाइंड आउट करना रिसर्चर का काम है। एंड वंस यू फाइंड आउट, सो नेक्स्ट रिसर्चर ने डायरेक्ट वही मॉडल यूज करना चाहिए, नो नीड टू गो फॉर ऑल दिस थ्री। फॉर दैट देयर इज एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो हियर आई गो हियर 2020 के बाद दिस टर्म्स कम इन पिक्चर, जीपीआई, ग्लोबल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जीपीआई, जिसका जीपीआई सबसे ज्यादा है नियरर टू 1, we call that model is the best model out of that four. Here you observe, here R square value 0.99 है, 0.99 इसकी 1 है, इसकी 0.94 है टोटल। Here the GPI of first exponential equation is 0.67, second 0.42. So out of these four, सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है? फर्स्ट वन, जिसका जीपीआई 0.67 है, नियरर टू 1। But GPI not only basis of only R square, it is basis on 10 statistical equation, and that worldwide, whether it's a medical, whether it's engineering, whether it's any things, if they want to calculate mathematical model, they want to use this statistical, and then they calculate the GPI. And this GPI terms comes now, and मेरा DST का यही काम था कि I calculate the global performance out of four. Now I can comfortably say that exponential mathematical model is best out of that four on the basis of GPI only, not on the basis of R square. Right? GPI का ये सब लिखा है। अब इसमें एक ब्यूटी बता दूं। इसमें we use 5 independent items. And now you are on the computer background है सबका, you know artificial intelligence, you know ANN, you know deep learning, you know machine learning. In civil engineering हमने फोटॉन के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। We don't know anything. So we have to take, हमको सिर्फ एक्सेल का ही सहारा था। And then you can't imagine जिसको हम we call it a donkey work और labor work मैंने किया कि 514 रीडिंग्स, पहला इक्वेशन, फिर दूसरे 514, फिर तीसरा, फिर ये 10 स्टैटिस्टिक्स में, where you get all this thing in ANN? You get all the statistical result directly in ANN, only you have to calculate GPI by mathematically. या उसका भी फॉर्मूला आपने डेवलप कर लिया तो नो नीड टू कैलकुलेट जीपीआई ऑल दिस। बट अगेन रिसर्चर ने यहाँ स्टॉप होना इज नॉट ए गुड साइन। रिसर्चर यहाँ रुक सकता है क्या? व्हेन यू कॉल रिसर्चर, आपने 5 इंडिपेंडेंट पाई लिए थे, उससे एक डिपेंडेंट पाई कैलकुलेट किया, बट मुझे पता चला है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस से इंपॉर्टेंस ऑफ पाई टर्म से कि वो 5 में से 2 तो मेरे न्यूट्रल थे,
आपल्या भाषेत आपण म्हणतो की कच्चा लिंबू, दो तो कच्चा लिंबू थे। मैंने तो, अब मुझे पता नहीं था, मैंने कर लिया टाइम वेस्ट, बट मुझे पता है कि दो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट है, तो दो जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया उनको निकाल दिया, वाटर सीमेंट रेशियो एंड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। और तीन मैथमेटिकल मॉडल के साथ सेम प्रोसीजर की आगे दिखाता हूँ, ताकि मैं ज्यादा बोर नहीं करूँ। हियर कंट्रोल स्ट्रेंथ परसेंटेज ऑफ फाइबर एस्पेक्ट रेशियो, 3 महीने लिए, दो कच्चा नींबू मैंने उड़ा दिए, जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे थे, वो सेंसिटिव भी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, और कैलकुलेशन में भी मेरा टाइम ले रहे थे, सो आई रिमूव दिस, एंड विद देयर फॉर दिस थ्री सेम प्रोसीजर इज डन। सिर्फ हाईलाइट करते जाता हूँ। ये डायरेक्ट लिखा है मैंने, एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल, तीन के साथ ये इक्वेशन, फिर लॉगरिथमिक, आरएसएम एंड सिम्युलेशन, चारों का सेम प्रोसीजर किया है। एंड हियर आई कैलकुलेट जीपीआई। सो हियर अगेन एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल मॉडल का जीपीआई सबसे ज्यादा था, 100.88 पहले मैंने 5 इंडिपेंडेंट पाई लेने के बाद 67 जीपीआई आया था, एक्सपोनेंशियल गुड था। अभी मैंने सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट पाई टर्म्स लिए, इंडिपेंडेंट टर्म्स। ऐसा मेरे साथ 2012 में हुआ था, अजीत नो दैट, मोहन, ये सब मुझे एसोसिएट थे। वी डू द एनालिसिस। पहले प्रिंसिपल बनने के बाद मैंने सिर्फ एक ही काम किया था कि टीआर लेके बैठा था पिछले 5 साल का, कि पीसी का, पीआईई का, पीआईटी का रिजल्ट ऐसा क्यों अच्छा होता है कि हमारा नहीं होता। तो देना अब्सर्ड कि 2-3 मार्क्स से हमारा रिजल्ट जा रहा था, बट तब हमने अलग अलग बहुत ज्यादा फैक्टर ले लिए, बट लास्ट में मुझे एक ही पता चला कि यूनिट टेस्ट 1, यूनिट 2 और सेशनल, तीन अगर सिर्फ आप लेते हो, इवन तो आप मैथमेटिकल मॉडल परफेक्ट बना सकते हो। बाकी दो की जरूरत नहीं थी, प्रैक्टिकल की और इसकी, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट में अच्छा है तो जरूरी नहीं कि थ्योरी में अच्छा होगा। सो नाउ ही कम कॉन्क्रीट, याच्यासाठी म्हणतो की 10 घंटे बाद कॉन्क्रीट सेट हो जाता है। इट्स अ कॉन्क्रीट डिसीजन कि आउट ऑफ 5 2 आर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करे, तो मैंने 3 के साथ ये सब किया, एंड इवन दो आई विल गुड गुड रिजल्ट। ये आप देखो, ये आंसर इज सेम ऑफ ऑल 0.81। अभी मैं डायरेक्टली डायरेक्ट से बोल सकता हूँ, इफ देयर आर कितने भी सिविल इंजीनियरिंग के लोग हो, कि इफ यू आर टू प्रेडिक्ट द स्टील फाइबर एंड स्ट्रेंथ, ओनली take only three things, three independent: control strength, percentage of fiber, and aggregate cement ratio। control strength means कंक्रीट की स्ट्रेंथ जिसमें फाइबर नहीं है, परसेंटेज ऑफ फाइबर आप डिसाइड करोगे, एक डालना है, दो डालना है, तीन डालना है, क्या, एंड यस एस्पेक्ट रेशियो, लेंथ अपॉन डायमीटर ऑफ दैट। सो ये काम है रिसर्चर का, कि नेक्स्ट रिसर्चर को बताओ बेटा तूने बहुत मेहनत कर ली, 5 का काम ही नहीं था इसमें। आर यू आर सरप्राइज टू प्रिपेयर दैट फर्स्ट मॉडल 9 आवर डेली के हिसाब से मुझे कुछ 16 डेज लगे थे। जब ये मैंने दो निग्लेक्ट किए, इट्स कम टू 9 डेज ओनली, तो मेरा आधा काम कम हो गया। नाउ आई कैन डायरेक्टली इसे रिसर्च कंक्रीट का है। वैसे अगर रिजल्ट की बात है, अब मैं डायरेक्ट बता दो, आप कभी भी कंपेयर करके देखो, यूनिट टेस्ट 1 का डाटा, यूनिट टेस्ट 2 का डाटा, सेशनल का डाटा, उसके प्रीवियस परसेंटेज लिख के देखो, ये फॉर्मूला में डालो। आप नए बच्चों के जैसे यूनिट टेस्ट के मार्क्स मिलते, इसके सेशनल के मिलते, फाइनल रिजल्ट के पहले आप उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट कर लोगे, एंड इट्स reliable। I am not saying it's a valid, valid means, but it's reliable। बस प्लस माइनस थोड़ा एरर होगा। अब 62 है तो परसेंटेज मिलना चाहिए, तो 64 65 होगा या 60 होगा, बट इट्स रिलायबल। हम देख लेते हैं बच्चों को, दैट्स व्हाई हम फोकस करते हैं कि यूनिट टेस्ट लो, रीटेस्ट लो, ऐसे नहीं कि प्रिंसिपल बोल रही है। देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड दैट, देयर इज इक्वेशन बिहाइंड दैट, देयर इज अ कंप्लीट प्रूवन डाटा। ऐसा नहीं कि हम बच्चों के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। क्लियर? इट मे हैपन कि वीआरसी के स्टूडेंट के साथ ये डाटा अप्लाई नहीं होगा, बट फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो हियर सेकंड, अभी यहाँ तो मैंने रुकना चाहिए था, बट नाउ इट्स द हाईएस्ट डिग्री इन इंजीनियरिंग, वी कॉल इट्स डीएससी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। पीएचडी तो 12 में कर ली। अब
रिसर्चर अगर यहाँ पे रख जाए, इफ देयर इज नो क्यूरियोसिटी, तो मतलब ही क्या है? दोनों में मैंने एक चीज देखी कि कंट्रोल स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल स्ट्रेंथ अगर नहीं है कंक्रीट की, तो मुझे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। सो देन क्यूरियोसिटी हुई कि अब ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें कंट्रोल स्ट्रेंथ ही नहीं लेंगे। सेकंड, इसमें भी वो इंपॉर्टेंट टर्म थी, 100% उसका इंपॉर्टेंट था। इन शॉर्ट ऐसा समझो कि ऑक्सीजन था उसका। बट अगर कोशिश करें कि नहीं ऑक्सीजन, बट क्या होगा अगर हमने कंट्रोल स्ट्रेंथ नहीं ली? एंड सेम द प्रोसीजर हियर। देखो, रिसर्च में जरूरी नहीं कि विल गेट रिजल्ट एवरी टाइम, बट आप आगे वाले को बता सके कि उसने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले इसमें मैंने बताया 5, फिर बताया कि 3। अब दोनों में मुझे दिख रहा है कि दिस इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट हैपेंड अगर मैं उसको नहीं लेता और मैथमेटिकल मॉडल बनाओ, तो ये हियर नाउ इन नेक्स्ट आई ओनली टेक वाटर सीमेंट रेशियो, परसेंट ऑफ आयरन एस्पेक्ट रेशियो। यहां से मैंने कंट्रोल स्ट्रेंथ हटा दी, डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूं। देखो, रिजल्ट इज नॉट गुड। एक के पास कोई भी नहीं है, इस -1.27 मींस आप कंट्रोल स्ट्रेंथ छोड़ नहीं सकते। इट्स अ हार्ट ऑफ दैट इक्वेशन। तो ये आइडेंटिफाई करना है रिसर्चर को होना चाहिए कि हमारे रिसर्च का हार्ट क्या है, वेंटिलेटर पे हम कितने दिन टिक सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करना इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज नॉट रिलायबल। बट ये मैं तब बता सकता हूँ जब मैंने मेरे लाइफ के 10-12 दिन उसमें वेस्ट किए, जब ये रिजल्ट्स आए, दे कैन कंफर्मली से दैट विदाउट कंट्रोल स्ट्रेंथ आप ले ही नहीं सकते। वैसे मैं एग्जामिनेशन में बोलता हूँ कि यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 तो ठीक है, रिटेस्ट नहीं लिया तो चलेगा, बट विदाउट सेशनल आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। दैट इज द व्हाट वी कॉल द हार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। अगर आपको उसको बनाना है फ्लड से रिलेटेड, वैसे ही कि कौन से मंथ में फ्लड सबसे ज्यादा आती है, अगर आपका पिछला 25 साल का डाटा है तो यू कैन प्रेडिक्ट नेक्स्ट। एवरीवेयर यू कैन डू द प्रेडिक्शन। सो हियर, बट ये तब होगा जब हम ये रिसर्च करके देखेंगे। नहीं, नो आई स्टॉप हियर। ऐसे बहुत से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एंड देन कॉन्क्रीटली वी कम। बट एक थी इसमें, एक और एक ब्यूटी आपको सिर्फ बता दूं, देन आई कंक्लूड। पहले तो इक्वेशन में आपने देखा कि देयर इज ओनली वन फार्मूला। एक फार्मूला से मैंने अभी तक वो यूज नहीं किया, बट एक फार्मूला से मैंने 3 स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट की थी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड प्लीट टेंशन स्ट्रेंथ। एक ही फार्मूले से मैंने 3 स्ट्रेंथ प्रेडिक्ट की थी, कंप्रेसिव, फ्लेक्सिबल एंड प्लीट टेंशन, एक फार्मूला से, जो अलग अलग है। मैंने ब्लड सैंपल दिया तो मैंने हेमोग्लोबिन भी ले लिया, मैंने शुगर भी ले लिया, और मैंने और कोई टाइफाइड की भी टेस्ट कर ली विद। बट हियर जब मैंने कंट्रोल स्ट्रेन नहीं लिया, एक इक्वेशन बनाने अलग अलग, इसके लिए मुझे अलग अलग, कॉम्प्रेसिव के लिए मुझे अलग मॉडल बनाना पड़ा। ये देखो, फ्लेक्सरल के लिए मुझे अलग मॉडल बनाना पड़ा, और फ्लिप टेंसर के लिए मुझे अलग मॉडल बनाना पड़ा। ये so it's a general. So in short, if you have any data, experimental data, collected data, field data, your research data, other research data, you can compare that data and you can easily make equations by using ANN there. ANN में बहुत easy है, logarithmic और exponential mathematical model भी ANN में बहुत जल्दी बन जाते हैं। Only you have to give the input, and in input exponential mathematical model formula, in logarithmic का formula, ये सब आपने अगर डालते हो तो आप इजीली वो फॉर्मूला प्रेडिक्ट कर सकते हो, और आपका डाटा का सोसाइटी को भी यूज होगा। सोसाइटी का डाटा भी आप यूज करें, देन यू कैन कम विद सम कॉन्क्रीट डिसीजन, राइट? So if you have any doubt, please ask. I will try to explain, and then we stop here. Yes. So collecting the data is very important. ये है, उसके आगे भी बहुत है, बट अप टू एन इज ओके।
RSM इज द पार्ट ऑफ, मैंने पहली बार मैटलैब किसी के लिए सीखा, इट्स नॉट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, बट एएनएन के लिए मुझे तकलीफ जाती है, और एएनएन इज करेंट नाउ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सो इफ मैंने पीएचडी में अगर रूटीन काम किया 2012 में, सो इट्स बीइंग रिसर्चर इज माय ड्यूटी कि मैं नए टेक्निक के साथ ही ऑप्टिमाइजेशन नहीं, basically there is one software for SPSS, but here no need for optimization because your experimental value is with you. अब predict formula में डाल के होता आपको error पता चलता है कि कितना one optimization formula is there by the SPSS you can do very easily. SPSS करके सॉफ्टवेयर आता है, उससे आप easily ऑप्टिमम कर सकते हो कि 514 में से अगर ये रीडिंग अगर मैं लेता हूँ ऑप्टिमम में तीनों, तो भी हम आप उससे, तो दैट विल गो फॉर SPSS फास्ट होता है। So the question is, what are the different parameters which can be used to predict the strength of the pillar, so that whenever I require to give the inputs to the ANN or any type of algorithms which I am using in deep learning or machine learning, what are the different parameters which should have to be put for it? No, what happened first you have to decide कि if it's a column, ये जो है वो कॉलम है, आड़ा जो हॉरिजॉन्टल होता है वो बीम है, सो कॉलम इज ए कंप्रेशन बीम, सो हमको कंप्रेशन पे वो स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए हमको उसको कंक्रीट और मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो डालना है, ये जो कंक्रीट मैंने लिया है वाटर सीमेंट रेशियो कंट्रोल कंक्रीट मींस जैसे M20 ग्रेड होता है तो उसकी स्ट्रेंथ M20 होती है, M30 मार्केट में आती है तो 43 ग्रेड सीमेंट 53 ग्रेड सीमेंट, क्या M20 मींस इट्स अ compressive strength of cement concrete cube after 28 days curing। तो अगर आपको पता है कि कॉलम में M20 ग्रेड क्योंकि वो पहले ही डिजाइन कर M20 ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहा है, फ्यूचर कंट्रोल स्ट्रेंथ इज 2022, इसमें आपने लोहा डाला है 4 बार डाले, तो कंक्रीट के एरिया की कितने परसेंट डाला है 1% 2%, सो कंक्रीट परसेंटेज ऑफ स्टील, जैसे इसमें हम कॉलम में 2% एक से ज्यादा नहीं डालते, बीम में 4% से ज्यादा नहीं डालते, 3% डाल दिया, एंड देन थर्ड वॉटर सिमेंट रेशियो, म्हणजे पाणी किती मिक्स केलं, आपल्याला आता पद्धत आहे की आपण पाहतो पाईपनी ते मिक्स करताय, इट्स अ व्हेरी अनटेक्निकल, बेसिकली वाटर और सीमेंट का कितना, जैसे आप आटा गूंथते हो तो कितना भी पानी डालने से नहीं चलता प्रॉपर, वैसे वाटर सीमेंट रेशियो का मिक्स होता है, अगर वो ज्यादा होगा तो वर्केबल कंक्रीटों का स्ट्रेंथ कम होगी, कम होगा तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, गिट्टी गिट्टी ऊपर आ जाएगा, इफ यू पुट ऑल these three things you can easily predict, but you require डाटा फील्ड, बहुत ज्यादा डाटा लगेगा आपको कि इसके पहले मैंने ऐसी 7 मंजिली बिल्डिंग बनाई थी, 7 मंजिली बिल्डिंग में मैंने ये कॉलम ये डाले थे और ये कॉलम की ये स्ट्रेंथ थी, अब मुझे 9 मंजिली बिल्डिंग बनाना है, मैं यू कैन इजीली, so it depends on you कि which independent आपके पास डाटा है वो आप वहां पे प्लेस करते हैं, आप पे डिपेंड होगा क्या, अगर आपने गलती से डाल दिया, मैंने की थी ना गलती, मैंने 5 डाटा लिए थे, बाद में मुझे पता चला कि 2 काम के नहीं थे, निकाल दिया, तो ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रायल बहुत ज्यादा नहीं, एक एक दो इसमें तो अगर आपका रिजल्ट ही नहीं है, अगर मेरे रिजल्ट नहीं आते तो आई नेवर से कि एक्सपोनेंशियल मेथड या लॉगरिथमिक मेथड के मॉडल के साथ आज जाओ, ऐसे कि स्टॉप, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो हमारे यहाँ ये जो प्रिडिक्शन होता है, आप बोलते हैं कितने दिन के बाद फ्लड के चांसेस है, ये ऑल दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ नाउअडेज इन ऑन एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, प्रिडिक्शन जो है वो ह्यूमिडिटी देखते हैं, आपको बता देते हैं मोबाइल में कि 3 दिन के बाद बारिश के चांसेस है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एएनएन की इतनी ह्यूमिडिटी थी, इतना इतना टेम्परेचर था, तो पिछले 10 साल में बारिश आई थी, तो अभी भी आएगी, ये होता है, सो इट हैव द स्ट्रांग डाटाबेस एंड ऑन, वैसे फ्लड का होता है, अभी दिल्ली में अलर्ट दिया है फॉग का, अब क्या भविष्यवाणी थोड़ी है थी, बट इट्स कॉमन कि 6 डिग्री टेम्परेचर अगर दिन में गया है, पिछले 4 दिन से सूरज नहीं निकला है, तो फॉग बढ़ा है, वही 6 डिग्री टेम्परेचर था, बट उसके दूसरे दिन आपको सूर्य देवता के दर्शन हुए तो फॉग नहीं हुआ है, तो ऑल दिस इज डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस डाटा, बट हम कभी उसको यूज नहीं करते हैं,
We least bothered about that, and then but ANN में बहुत easy है. And what is one of the use of artificial intelligence? जिनको ANN आ गया, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं. You can easily, if you only put the data within a 15-20 minutes, you will get the output. आपको देखना है कि कैसे उसको ये करना है. आपको ये भी निकाल सकते हो. रिसेंट सर्वे कि आपने देखा होगा कि नाउअडेज ओबेसिटी बढ़ रही है बच्चों में 8 7 से 15 16 साल के. तो रिसेंटली जापान दे ऑन द बेसिस ऑफ एएनएन की थ्योरी की इनपुट डाल के कि कौन से बच्चों में बढ़ी है कौन से में नहीं बढ़ी है. सो यू कैन यूज एनीवेयर ना. फील्ड आपको सिलेक्ट करना है. मेरी सिविल थी, मैंने कंक्रीट कुछ ना, आप कोई और चुन सकते हो. क्लियर. थैंक यू फॉर पेशेंस लर्निंग. कोऑपरेट किया मुझे अच्छा, क्योंकि 108 टेम्परेचर था मुझे मॉर्निंग में. थ्रोट इन्फेक्शन और पूरा. बट इट्स अ ब्यूटी कि प्रीवियस डाटा मेरे पास था कि अल्कोहल अगर लेता हूँ 650 की विद हल्दी के दूध, तो मैं आगे के 3 घंटे कुछ भी कर सकता हूँ. सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डाटा मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बात कर लूंगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir, for taking time, for your very good time and explaining such a beautiful way. I know very few of you are from civil background, although sir has explained the topic and make a relevance that how at least you can have an approach if you are as a leader. Do not stop. You are getting an output. Go deep into that. Thank you so much, sir. And I request all the participants to please proceed as their program schedule. So here we conclude our session, technical session. Thank you so much.